thank you everyone for sparing time and coming here. Our entire agenda was to bring everyone from different industry to come in a one platform because our at the end everyone we are connected to one cause, which is support to the society, be it hotels, be it farmers oriented programs, or be it agriculture universities, or for that matter, we as a social entrepreneur. What we see of lately is the migration, reverse migration has happened, but with no backup. And of lately, I have been talking to everyone, and we thought let's do a concept called Milap, wherein all the sides of all the corners which are required to come together to support the community can speak and come into a conclusion or some sort of a decision wherein we support them in a way that they deserve, and it's a sustainable and long term project. So in that context, I'll introduce every each one of you one by one. I'll start with Miss Mridula. Ma'am has been connected with us from a couple of months, and we discussed a lot. And ma'am is basically head of Tata Tourism Trust, and currently she will be representing today the farmers, the production of their angle, and their views basically today. I'll talk about Mr. Bhatt. Mr. Bhatt is General Manager Taj Corbett, and he'll be talking about and discussing about what is current requirement of market, and what customer wants, what the needs are like, or what can be the future products which all we can work on. Third will be Dr. M.S. Negi. Dr. M.S. Negi will be the research and development and the support to the farmer in terms of all agriculture support, the knowledge and experience, and he will focus mainly on all the agriculture crop, which eventually will drive to the product given by Mr. Bhatt. And then we have Mohit with us. Mohit is associated with Shunni and many of like us in Uttarakhand. He helps all the brands like us to come in a platform where whatever we communicate goes to the end consumer. That includes farmer, anyone from top to bottom. So that's the small intro for everyone. So I think we can start. And now I'll start with Mridula ma'am. So you can just give a little introduction about your professional career and how you are associated with society in terms of social angle. थैंक यू सागर एंड तो जैसा आपने कहा कि मैं टाटा ट्रस्ट में टूरिज्म का वर्टिकल है, जो गांव का विकास, रूरल पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट एक हमारा एक थीम है टाटा ट्रस्ट के अंदर। उसमें ये टूरिज्म की एक नई चीज आई है कि गांव में क्या क्या रोजगार के साधन हो सकते हैं, उनमें खासकर जो सुंदर जगह हैं, जो ऐसे परिवेश हैं जैसे उत्तराखंड का है, वहाँ पे पर्यटन या टूरिज्म ही एक रोजगार का एक बड़ा जरिया बन रहा है और बन सकता है। तो मेरा काम वो है कि जो बाकी हमारे खेती बाड़ी के, पशुपालन के और भी जो सारे कार्यक्रम चलते हैं, उनके साथ में ये पर्यटन का काम कैसे चल सकता है एक और आय के साधन के रूप में। तो मेरा ताज से भी कई सालों का संपर्क रहा। 19 साल मैंने वहाँ काम किया और पिछले 2 साल से मैं टाटा ट्रस्ट में काम कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा इस सबको जानती हूँ ये नहीं कह सकती, मगर उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से आना जाना लगा हुआ है, और बाकी भी ताज में रहते हुए भी करीब पिछले 13-14 साल में बहुत ग्रामीण और इस तरह का जो सुदूर तरह के गांव होते हैं वो भी देखे। तो शायद वो सारा जो भी मेरा सोच और जो भी मेरी शिक्षा है वो उसको थोड़ा मैं यहाँ लाने का, और आपके इस कार्यक्रम में और जो चर्चा कर रहे हैं हम देखिए क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पहल के लिए। थैंक यू मैम। आपका आपने जो पॉइंट रखे हैं और वही
आज एक शुरुआत है जो आज हम शुरू कर रहे हैं, और होपफुली आने वाले टाइम पे यही लोग जो आज शुरू कर रहे हैं ये औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे। सो इसी कड़ी में मिस्टर भट्ट सर आपसे जरा आप अपने प्रोफेशनल करियर और जो आप कर रहे हैं और आप सोसाइटी और सोशल एंगल से कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ दो चार लाइनें। नमस्कार सभी को। मिर्ला ने हिंदी बोला तो हिंदी में ही अनुवाद करते हैं, कोशिश करते हैं कि उच्चारण भी सही रहे। जी सर। मिर्ला में मैंने काम किया हुआ है, मैं मिर्ला के साथ काफी साल काम किया हुआ है। मध्य प्रदेश में माय इमीडिएट बॉसेस है। जहाँ तक मेरा परिचय है, मैं ताज में पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। टोटल एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी में अब 16 साल 17 साल का हो चुका है। कुछ साल कमर्शियल होटल करने के बाद मैं रिजॉर्ट्स में आ गया था, और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस मेरा भी है सारा का सारा ऐसी जगहों में जो कि नो मैंस लैंड, जो सुदूर इलाके होते हैं, उन्हीं में काम किया है। सो रणथंबोर हो गया, अलवर हो गया, मध्य प्रदेश के 4 रिमोट एरिया हो गए, कर्नाटका में एक जगह है कुर्ग, वहाँ का एरिया हो गया, और नेपाल में भी किया हुआ है कुछ काम। सो मैंने लोकल लोगों के साथ बहुत जमीन में जुड़ के काम किया हुआ है। सो आई थिंक मुझे समझ में आता है वो एक पर्टिकुलर चीज की उनकी क्या जरूरत होती है, और एक लग्जरी टूरिज्म में कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। जो होटल इंडस्ट्री का पैटर्न मेरे दिमाग में नया बना है इस एक्सपीरियंस के बाद, वो सिर्फ ये बना है कि अगर आप एक हाई एंड होटल रिजॉर्ट चला रहे हैं या लॉज चला रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी जिसको लोग समझते हैं कि वो महंगा होता है, वो एक्चुअली रिवर्स है। सस्टेनेबिलिटी सस्ता पड़ रहा होता है, और बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा होता है। इवन जो लग्जरी आइटम जो गेस्ट चाहते हैं, वो लोकल के नाम पे ज्यादा अच्छा प्राइस पॉइंट बनता है डिस्कशन के लिए। सो ये एक्सपीरियंस के साथ हमने कई जगह काम किया, नेपाल में भी डिड इट ब्यूटीफुली। अभी हमने कॉर्बेट में भी यही चीजें इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें ऑब्वियसली शून्य भी एक पार्टनर थे। इसी तरह से बकरी छाप जो अपना ग्रीन पीपल है, उनकी टीम के साथ भी हमने काम किया। तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के बाद मुझे तो सिर्फ ये समझ में आता है कि अगर आप लोकल रिसोर्सेज के थ्रू कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो उसको ना सिर्फ हाई एंड करके बेच सकते हैं, बल्कि उसकी वैल्यू भी अच्छी होती है। पीपल कनेक्ट बेटर, तो कनेक्शन बहुत अच्छा महसूस होता है। जितने भी ट्रैवलर होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ लोकल महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल, हम उत्तराखंडी खाने की बात करते हैं, चटनियों की ड्राई एग्जाम्पल, अगर किसी को पास्ता खाना हो तो इटली में जाके खाएगा। ट्रू सर, सही बात सही बात। सर ये सारी चीजें ही ल्यूर कर जाती हैं गेस्ट को। सो वो एंगल है आज की डेट में टूरिज्म का मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर माध्यम से जो अभी आपने मिलाप शुरू किया है, हम इस नॉलेज को नीचे पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि अब वो वापस आए हैं तो कुछ ऐसा शुरू करें जिससे कि इस पे काम किया जा सके और इसको और सस्टेनेबल बनाया जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जैसा कि आपने बताया कि जी सर, जी सर। मैंने कहा इस कड़ी में हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर। आई एम जस्ट अ स्मॉल जनरल मैनेजर, बट इफ माय इनपुट कैन असिस्ट इन एनी फॉर्मेट, बिल्कुल ये खुशी होगी हमें। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया, और जो सर का एक हमारे साथ एक इंट्रोडक्शन ऐसे भी है कि जब से हमने शुरू किया था, तो जब हमने शून्य शुरू किया तो सर ने सबसे पहले आज से 2 साल पहले सबसे पहले सर ही ने एक्नॉलेज किया था हमको, जब हम कुछ भी नहीं थे और जब शुरू ही कर रहे थे। इनफैक्ट हमने ना हमारे पास प्रोडक्ट थे ना कुछ था, हम लोग सिर्फ एक सोच के साथ निकले थे कि कुछ करना है। तो ही वाज द फर्स्ट मैन हु गेव अस प्लेटफॉर्म टू डू समथिंग। और अभी कम से कम 200-250 औरतें हैं थारू ट्राइब की जो डायरेक्टली आज के डेट में डिपेंडेंट हैं ताज कॉर्बेट पे, क्योंकि रेगुलर सामान आता है और रेगुलर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो सर काफ़ी क्लोज हैं उन लोगों के साथ और रेगुलर हमारा इंटरेक्शन रहता है। तो थैंक यू सर फॉर दैट। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर एम एस नेगी हमारे साथ, सर का एसोसिएशन पंतनगर यूनिवर्सिटी से है। तो सर अब कुछ आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू नाथ। मैं यहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और सस्त्र विज्ञान मेरा है। और अभी मैं जो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च सेंटर जो है उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर मैं देखता हूँ। तो हम लोगों का भी पूरा एसोसिएशन रहता है किसानों से, केवीके के थ्रू किसानों से एसोसिएशन रहता है। और साथ ही साथ जो है किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बनाए हैं और उनको किसानों की समस्याओं को समाधान देते रहते हैं।
तो इस तरह से और यहाँ पे इससे पहले जो है भरसार है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भरसार है, वहाँ पे मैंने काम किया है पहले, और उसके बाद 2012 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में आया, और अभी मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में के पद पर कार्यरत हूँ, और वर्तमान में जो औषधि पौधा नेशनल प्लांट रिसर्च सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ। थैंक यू सर, आपके तो गाइडेंस और मार्गदर्शन की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जो भी अभी पूरे उत्तराखंड में लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो दो ही तरह के लोग हैं। या तो वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो एक बहुत ही बेसिक सी क्रॉप से जुड़े हुए हैं जो कि रेगुलर क्रॉप है, और उसका रिटर्न उनको उतना नहीं मिलता है, और जबकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। उसके दूसरी तरफ के आप विशेषज्ञ हैं, आपका मेडिसिन अरोमा प्लांट, जिसमें कि आपकी मेहनत कम है लेकिन मुनाफा 4 गुना होता है उसमें। जब आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो आई एम श्योर कि लोगों को पता लगेगा कि क्यों हॉर्टिकल्चर के बाद मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है और उसका कैसे काम आता है। तो इसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे सर। लास्ट इस कड़ी में हमारे साथ मोहित भट्ट जी हैं। तो मोहित, हमारे जैसे जैसे मैंने बताया कई सारे स्टार्टअप हैं उत्तराखंड में, और जो सोशल एंगल, तो इनकी स्पेशलिटी मोस्टली सोशल स्टार्टअप के साथ ही है, और ये उनके कम्युनिकेशन को फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक उनकी लैंग्वेज में कैसे उन तक पहुंचाते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। तो मोहित। नमस्कार सभी को। तो मैं ज़्यादातर सागर ने मेरे बारे में बता दिया है, बट क्विकली आई जस्ट वांट टू टेल कि मेरी एक छोटी सी ब्रीफ है जो मैं बता सकता हूँ कि मैं मूल निवासी उत्तराखंड से ही हूँ। पिछले 8 साल से मैं डिज़ाइन फील्ड में, जैसे सागर ने बताया, शून्य एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूँ इन मीडिया। मेरा काम बेसिकली उनकी आवाज़ गाँव वाले तक पहुँचाना है, गाँव वालों की आवाज़ सारे वर्ल्ड तक पहुंचाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गांव जो उत्तराखंड है बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे सुविधा के नाम पे बहुत कम कम्युनिकेशन चैनल्स है हमारे पास। वो लोग फेसबुक में इतना एक्टिव नहीं है जितना हम लोग हैं। तो मे बी फेसबुक एक, हम लोग सोच रहे हैं सोशल मीडिया, बट बहुत कम लोग हैं जो उस तक पहुंच पाते हैं। तो मेरा बेसिकली जो रिसर्च पिछले 2 साल से चल रही है कि कौन सा नया मीडियम देखा जाए जिनसे हमारी आवाज उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग तो उनके बारे में जानते हैं काफी, एंड हम लोग काफी रिसर्च करते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता कि वो कैसे अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुति करें। वो लोग के पास बहुत टैलेंट है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उत्तराखंड में डेवलप करनी है। तो उसके लिए मैं सागर के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, शून्य के साथ। और तो मेरा काम बेसिकली सही जगह सही माध्यम से सभी लोगों को वो पहुंचाना है जो हम लोग एक्चुअली ये सब हम लोग साथ पे कर रहे हैं। तो शून्य के साथ ये मिलाप हमारी एक सोच थी जिसमें हम लोग सारी फील्ड से जो अपने एक्सपर्टीज है कैसे सब साथ में मिलके और एक काम को एक निर्णय तक लेके जाए। मतलब बातें तो सभी कर लेते हैं, पर कुछ एक्टिविटी करना जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल जाता है। सागर, ओवर टू यू। थैंक यू। तो सर, तो अभी हर कोई आई होप एक दूसरे को समझ गया हो और एक दूसरे की एक्सपर्टीज के बारे में थोड़ी सी हमको इन्फॉर्मेशन आ गई है। सो आई क्विकली मैं इस चीज़ को जो हमारा मेन आज का एजेंडा है जिसके ऊपर हमको बात करनी है और जिसके ऊपर हम लोगों को एक निर्णय ना सही लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन पे आए ताकि हम एक आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सके उसको समझ पाएँ। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमको कैसे हम लोकल्स को सपोर्ट करें। अब लोकल्स में हमारे किसान भी आते हैं, लोकल्स में वो लोग भी आते हैं जो अभी करंट जनरेशन है जो बाहर गई हुई थी और वापस आ गई है, और एट द सेम टाइम वो लोग भी हैं जो एस्पायर थे बाहर जाने के लिए। तो हम 3 अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ बात कर रहे हैं। तो उन सब के लिए क्या हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड हो, या हमारी हेरिटेज बेस्ड हो। तो क्या उसके जरिए एक ही सोल्यूशन से कई सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
और शॉर्ट टर्म ना हो लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हो, जहाँ पे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट जो बाहर गए हैं शायद वो भी वापस आ सकें। और तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि हम मोर और लेस सारे लोग एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं, तो हम उसको एक एक अपना बेस लेके चलते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग हियर कि हाउ टू सपोर्ट लोकल इन अ वे दैट दे डोंट हैव टू गो आउट, और हु हैव गॉन आउट उनको वापस आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहला मैम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू ओवर, आपका पास इतना एक्सपीरियंस ओवर ऑफ लेटली आपके पास है, और आपने लोगों से ग्राउंड पे भी आपने बात की है, हम लोग जब फोन पे भी बात कर रहे थे तो आपने मुझे कई सारे ऐसे ऐसे फैक्ट बताए थे जो कि बहुत ही सो रियल हैं, जो कि बहुत ही कनेक्टेड हैं उन लोगों से जिनको लगता है कि वो बाहर आएंगे तो शायद अभी वैसा ही होगा। बट जो भी अभी लॉकडाउन हुआ है और जो भी कोरोना वायरस की वजह से अब इशू आएगा हॉस्पिटैलिटी और फॉर दैट मैटर एनी इंडस्ट्री में, तो क्या अब उनकी स्टेट क्या होगी, और जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके उनके लिए आपके अभी आपके जो भी आपका ग्रुप है और प्रोफेशनली है उसमें आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? तो जो अभी तक हम लोग ने बहुत क्विक सा सर्वे किया कुछ क्लस्टर्स में। हिमोत्थान जो हमारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ट्रस्ट की उत्तराखंड में, वो करीब 60,000 महिलाओं के साथ काम करते हैं। तो उनमें से कुछ हमने क्लस्टर चुने और उनमें से बात की, तो ये समझ में आया कि काफी संख्या है जो बाहर काम कर रही थी, टूरिज्म में काम कर रही थी, और उसमें से 75% लोग अभी वापस आ गए हैं, 25% नहीं आ पाए हैं, रुके हुए हैं। तो हर गांव में करीब 25 से 30 युवा, अगर हम उत्तराखंड में करीब 500 लोगों का समझ लीजिए एवरेज एक गांव होता है, तो 25 से 30 युवा ऐसे हैं जो बाहर काम कर रहे थे और वापस आ चुके हैं। और अभी तो शायद उनके मन में एक यही है आशा की ठीक है अब खरीफ की प्लांटिंग वगैरह होगी तो फिर चले जाएंगे जुलाई तक, शायद सब कुछ ठीक हो जाए तो हम वापस अपने अपने कामों में जाने का हमको मौका मिलेगा। आधे शायद सोच रहे हैं कि थोड़ा और संभल जाएगा, अक्टूबर में निकल जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो अभी तक तो उनके मन में ये है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कई बार बाहर जाने का एक प्रेशर भी होता है कि भाई ये गांव में क्यों बैठा हुआ है, ये इसको और कुछ काम जी नहीं है क्या, अच्छा कुछ काम नहीं मिला, तो उस चक्कर में भी बाहर चले जाते हैं। तो अब शायद उस तरह का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा तो भी लोग रहेंगे। तो कुछ महीने तो है यहाँ पे लोग, और शायद ढूंढ भी रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसको लेकर हम भले ही थोड़ा कम पैसा मिले मगर गांव में ही रह सके। तो एक थोड़ी सोच खुलनी चालू हुई है। हालांकि सबने मन नहीं बनाया है, करीब 50%, 60% तो अभी वापस जाएंगे ही, जिनकी सैलरी थोड़ी अच्छी भी थी वो वापस जाना चाहेंगे, और हर कोई बाहर निकलना चाहता है। हम लोग शहरों के बच्चे बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। बाहर का भी देखें और देखकर खुद ही तुलना करें। ये है कि जो लोग किसी एक तरह से प्रेशर में बाहर जा रहे थे शायद वो जाना अब थोड़ा कम होगा। तो युवा अवसर तो जरूर ढूंढ रहे हैं, और जो पर्यटन है उसमें रितेश ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, असर जी तो मैम, जी आएगा। मैम, जी जी जी। और कुछ उसके हिसाब से जॉब लॉसेस भी होंगे। तो ये दोनों चीजें हाँ साथ में लेके एक तरह से देखें तो एक बहुत नई स्थिति बनी है, बहुत दशकों बाद की। एक पढ़ा लिखा वर्ग जो बाहर काम कर रहा था अब गांव में है, और शायद कुछ नई आंखों से भी देख रहा है गांव को कि शहर मतलब हर चीज अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आखिर कैसे रातों रात भागकर लोगों को आना पड़ा, और जो जी रह गए उनका जीवन, और जो गांव में है उनको लिए तो लॉकडाउन हो चाहे ना हो अभी भी अच्छी मीनू अपने खेतों में जा पा रहे हैं। के लिए उतना ज्यादा अंतर भी नहीं आया है, मगर शहर वाले कैसे छोटी छोटी जगहों में फंसे पड़े हुए हैं। तो शायद वो सब देख के एक नई नस्ल से देख रहे हैं, और इसमें अगर हम लोग कुछ नए विचार निकलते हैं, एक वो चीज होगी। दूसरी मैं ये भी बोलूंगी कि और रितेश अगेन उसको शायद और आगे बढ़ाएं उस बात को कि क्या कोरोना ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि हम जिस तरह से जी रहे थे,
जिस तरह से हम बहुत ज्यादा प्रकृति से कट गए थे, क्या वो सही तरीका है? क्या हमें अपना जीवन पद्धति नहीं बदलनी चाहिए? क्या हम, और अब सब देख रहे हैं कि कैसे प्रदूषण कम हो गया है, नदियां साफ हो रही हैं, हवा साफ हो रही है, तो क्या वो ऐसी चीज, क्या ये सब हम नहीं चाहते ज्यादा? तो ये सब भी दूसरी तरह से शहरों पे लोग सोच रहे हैं, तो सोच दोनों जगह बदल रही है, गांव में भी शहरों में भी। और इन दोनों के इस बदलाव में क्या नया निकल कर आता है, ये सोचने की बात है। और उस नए को कैसे संवारा जाए, क्योंकि वो बहुत आसानी से भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल मैम, जैसा आपने आपने कहा कि कोरोना वायरस शायद ये क्राइसिस भी है, बट सेम टाइम में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है दोबारा उन चीज़ों को वैल्यू देने की जो शायद हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, और जिन चीज़ों के लिए जो बहुत बेसिक है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो ट्रेडिशन है, और चाहे जैसा आपने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से और इन इश्यूज़ की वजह से अभी करंटली न्यूज़ में जो बोलते हैं कि ओजोन लेयर अभी हील हो रही है। हमारी हरिद्वार के वीडियो देखते हैं तो गंगा नदी साफ हो गई है। आप कहीं भी देखिए तो शायद इसको हम क्राइसिस तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अब शायद वापस आए हैं, और कलेक्टिवली अगर वो सब सोचें और एक सपोर्ट से कि कौन से वो वेज हो सकते हैं कि उनको वापस ही ना जाना पड़े और सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से वो अपने ही स्पेस पे रहें। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर भट्ट, आप जिस सेगमेंट में हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास एक चाहे वो कंज्यूमर हो या चाहे वो गांव से लोग हों, आप एक सेंटर ऑफ अटैचमेंट हैं हर किसी के, तो आप क्या देखते हैं वहाँ, और व्हाट इज इन योर वे इज अ वे फॉरवर्ड? आगे क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लोग कैसे आगे जिए, और चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे एग्रीकल्चर बेस हो, व्हाट इज योर वे ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड बियॉन्ड कोरोना वायरस और कोविड, बियॉन्ड कोविड? सर, जो सिचुएशन है वो सभी के लिए अनप्रेसिडेंटेड थी, किसी को आइडिया नहीं था कि इस तरह कोई चीज होगी, बट इसका इम्पैक्ट जगह जगह अलग अलग तरह से आएगा। कुछ जगह होंगी जो 6 महीने में रिकवर करना शुरू कर देंगी, कुछ 9 महीने का समय लेंगी, कुछ को शायद 1 साल या उससे ज्यादा का समय भी लगे। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ के परिवेश में तो बच्चे तो काफी वापस आए हैं, बट अगर स्टेट वाइज बात करें और टूरिज्म को ध्यान में रखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल जो अपना शिमला का इलाका है, और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका, ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। क्योंकि हुआ ये है कि कोरोना के कारण लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि पोल्यूशन का एक इम्पैक्ट रहा है, जो मिर्ला कहना चाह रही थी, सस्टेनेबिलिटी बेस्ड हम लोग जिस तरह से जी रहे थे उसका क्या असर पड़ा है, उसके कारण लोग अब इसको वैल्यू जरूर देंगे। सो हमें लगता है कि आने वाले समय में सस्टेनेबल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। छोटे रिजॉर्ट्स जो कि नेचर के पास आपको लेके जा सके, उसमें इम्पैक्ट अच्छा आएगा। एग्रो टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो हमें लगता है अगेन मूव करेगा। तो टूरिज्म के 3-4 वर्टिकल तो हम सीधा सीधा ग्रो करते हुए देख ही रहे हैं, और हमें लगता है इसमें स्पाइक भी आएगा इनिशियल कुछ डेज का। सो अभी तो बिल्कुल भी कोई रेवेन्यू नहीं है, बट जिस दिन खुलेगा शायद पहले 15 दिन वी कैन गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू, शायद वो सबसे अच्छा रेवेन्यू भी आए। जहां तक बात है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, डेफिनेटली ये एक सेंट्रल इंडस्ट्री है उत्तराखंड की, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म से जुड़ी हुई है, देवभूमि भी कहते हैं इसको। सो और सबसे ज्यादा मैन फोर्स जो है, वर्क फोर्स हॉस्पिटैलिटी की, उत्तराखंड से आती है। ऑलमोस्ट 45 to 50% जो है मैन फोर्स उत्तराखंड की है ऑल ओवर इंडिया। अगर इस डेटा के हिसाब से देखें तो अपॉर्चुनिटी वाइज हमें जो लगता है आज की डेट में, अगर प्रोडक्ट में देखें, हमें लगता है we need to develop new sustainable product on the line of agriculture। हमें ऐसी दालें चाहिए, ऐसा सामान चाहिए जो पहाड़ से आ रहा हो, तो यहीं का लोकल हो, जिसके कार्बन कम हो। हमें ऐसे सोप चाहिए जो कि हर्बल हो, जो पहाड़ से ही आ रहे हो, जिसमें अगेन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड वीटिसाइड मिनिमम हो। हम चाहेंगे कि सैनिटाइजर की सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका है अचीव करना, वो यहीं के गांव वाले बनाएं और हमें अवेलेबल हो सकें। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रेट रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं विद इन 3 to 6 मंथ। वो डॉक्टर साहब बता पाएंगे कौन सी फसलें होंगी जो जल्दी उगाई जा सके, बट मुझे लगता है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि फिर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के साथ चीजें बिकना शुरू होंगी। अभी इसकी रिक्वायरमेंट जो दिख रही है वो इसका आई थिंक 30% भी नहीं है जो रिक्वायरमेंट है। एक बार ये खुलेगा और लोग जब मूव करना शुरू करेंगे
तो सैनिटाइजर जेब में भी होगा, बैग में भी होगा, कार में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, मल्टीपल जगह लगा होगा। हॉस्पिटल होटल से बचे हुए हैं ही नहीं। तो ये एक पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। सोप, सैनिटाइजर, इंसेक्टिसाइड्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ हर्ब्स, कोई इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स, ये सारी चीजें हैं जो होटल अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि गेस्ट आएगा इस तरह की चीजों को देखना, और अगर उस पर लिखा है कि इट इज अ हर्बल थिंग, तो उसके इम्पैक्ट और अच्छे होते हैं हमारे लिए। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें जरूर पढ़ने वाली हैं। जहां तक बात है वर्क फोर्स की, वर्क फोर्स अगर यहीं पे यूटिलाइज की जा सके तो बहुत अच्छी बात है। ये आसान नहीं होगा। जैसे मुन्ना ने कहा था कि जिन भी लोगों की सैलरी ज्यादा है, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि बाहर जाएं, बट कई लोग इस चीज को भी समझ नहीं पाएंगे कि इसका इम्पैक्ट लंबा होने वाला है। तो अगर उत्तराखंड में रह के वो नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके, जैसी हम बातें कर रहे हैं, तो शायद 3 महीने 6 महीने में फिर भी कुछ हो सके। लेकिन अगर दिल्ली जाएं या मेट्रो सिटी जाएं तो वहां यही चीजें साल या उससे ज्यादा भी लग सकती हैं रिकवर होने में। तो ये है अभी सिचुएशन। जहां तक हमें लगता है, हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो आने वाली है, जैसे मैंने कहा, वो हर्बल प्रोडक्ट की ही आएगी। सैनिटाइजर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आने वाली है। उसके साथ साथ हर्बल हेल्थ केयर, हर्बल फूड प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं। इनकी रिक्वायरमेंट मैसिव रहेगी। जो भी होटल इनको प्रोवाइड कर पाएंगे, ऑब्वियसली उन पे गेस्ट जाना पसंद करेंगे। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर इस टाइम पे काम किया जाए तो आई थिंक 2 से 3 महीने में, जब लॉकडाउन खुले या 4 महीने में, जब भी हमारा टूरिस्ट फ्लो बढ़े, तो सप्लाई भी सीधा और मार्केट इसका सीधा कंजम्पशन उसका, ये मार्केट में खाली नहीं रहेगा। ये ऐसा सामान रहेगा कि इसकी कमी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, राइटली पॉइंटेड सर। यही आई थिंक यही वे फॉरवर्ड भी है। और अब जैसा कि हम सभी समझ रहे हैं कि इट्स टाइम टू गो बैक टू द रूट। और जैसा कि आपने 4-5 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, आपने बताया कि जो लोग अभी हैं उनका कितना लंबा टाइम है रहने का और आगे शायद जाने का भी। तो डॉक्टर साहब, उसी बस मैं मिस्टर भट्ट के पॉइंट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आप से जानना चाहेंगे हम सब लोग कि क्या ऐसे हमारे पास एरोमा और मेडिसिन प्लांट्स हैं जिसके बेस पे हम सैनिटाइजर, सोप, शैम्पू और लेट्स से फॉर दैट मैटर इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स, मतलब जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता अपनी डे टू डे लाइफ में, क्या हम इस अरोमा और मेडिसिन प्लांट्स के थ्रू बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हाउ फीजिबल, ये कितना मुश्किल और आसान है उन किसानों के लिए जो दूर दराज में हैं या तराई में हैं? इनकी क्या परिस्थितियां होती हैं और इनके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो कुछ इस पे प्रकाश डालिए। धन्यवाद सागर। अभी सुना मैंने आप लोगों को, मैडम को सुना और भट्ट जी को सुना, बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से एक नया सिनेरियो हमारे सामने आया है और हम देख रहे हैं कि लोग खेती की तरफ, मीन्स बेसिक्स की तरफ लौट रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी जो खेती अगर मजबूत है तभी हम आज कोविड-19 से लड़ पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर देश में अनाज की आज कोई कमी नहीं है और अगले 1 साल तक भी अगर इस तरह की स्थिति रहे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि खेती से ही जो है बेसिक हमारा देश चलता है। और आज के टाइम में अगर किसी को ज़रूरत है तो राशन की है, किसी को ज़रूरत है तो रोटी की है, और कोई आज जो हमारी जो चीज़ें थी जिनको हमने जो है अपनी नेसेसिटी बना दिया था, जो कि हमारी एसेसरी थी, चीज़ें थी, जैसे कि तमाम जो हम खाते थे, आज हम भी देख रहे हैं कि कहीं जा नहीं पाते, घर में बैठे हैं। तमाम जो इटालियन फूड्स थे जो उनको हम बड़ा अच्छा महान मानते हैं, वो बच्चे भी मानते हैं, पिज़्ज़ा और क्या-क्या है वो जो बर्गर वगैरह, तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो रोटी चाहिए और चावल दाल चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। यानी अगर आपके पास ज़मीन है, आप उत्पादन कर सकते हैं, तो सफिशिएंट सनलाइट इज़ देयर, एयर इज़ देयर, और सब आपके पास मिट्टी है, ज़मीन है, आप उगा सकते हैं, खा सकते हैं। आज ये पता चल गया कि आदमी को जीवन के लिए केवल जो है खेती पर निर्भर रह सकता है। आज ये हमें पता चल गया है। और बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने मैन मेड हैं, ज़्यादातर हमने बनाई हैं, अपनी आवश्यकताएं बना दी हैं। आज हमें ये चीज़ चाहिए, आज वो चीज़ चाहिए, और हमारे दिन प्रतिदिन हमारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो आज जो है ये पुराने लोग तो जानते ही हैं, वो खेती से जुड़े थे, लेकिन जो नए लोग हैं जो कि
तमाम मेट्रो सिटीज़ में निकल गए, इधर उधर निकल गए हैं, उनको भी आज पता चल रहा होगा कि अपने गांव की कीमत और अपनी जगह की कीमत, उसकी कीमत क्या है। क्योंकि खेती से ही आप जो मेन जो है उत्पादन जहाँ से हो रहा है वो खेती है। बाकी तो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो है अपनी सर्विसेज दे रहा है। उत्पादन मेन जो है प्राइमरी प्रोड्यूस जो आपका खेती से आ रहा है, जिसमें कि आपका जो नेचुरल चीज़ों से आ रहा है ना, जिसमें कोई आर्टिफिशियल ज़्यादा चीज़ें नहीं है अगर आप उसको सही से करें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़मीन से ही जुड़ना पड़ेगा। आखिर में ये कोरोना वायरस बहुत अच्छी सीख देगा लोगों को लास्ट में कि भाई आप ज़मीन से जुड़िए और ज़मीन में रहिए, अपने बेसिक्स मजबूत कीजिए। बेसिक्स मजबूत होंगे तो आगे की लाइफ भी मजबूत होगी। अगर हमारी खेती की दशा और दिशा आज सही नहीं होती तो कोविड-19 में हम जो है इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास फूड की कमी हो जाती है। लेकिन आज कोई फूड के बारे में कोई नहीं कह रहा है, हर कोई रहा है कि एम्पल फूड इज अवेलेबल, मीन्स किसी को भी दे दो, जिसको फूड नहीं है दो। यानी हमारे पास गोडाउन्स भरे पड़े हैं, यानी हमारे पास सोर्स सस्टेनेबिलिटी है जो आगे तक जो है हमें साथ देती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट चीज़ है और बाकी जो उसके जो आगे जो है वो भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर है जिसमें सर्विस की बात आती है, या ट्रांसपोर्ट जो है, या जो होटल इंडस्ट्री की बात की और इंडस्ट्री भी इससे जुड़ी है। ये सब इससे जो है लिंक जो है एग्रीकल्चर से ही। आज के टाइम में आप कोई बात कीजिए, चाय से लेके कॉफ़ी से लेके आप डेयरी मिल्क से चॉकलेट से लेके जो यू नेम एनीथिंग एंड यू विल फाइंड दैट दी मतलब बेस में जो है आपका एग्रीकल्चर है। तो कहने मतलब एग्रीकल्चर से ही शुरू हुआ है, चाहे आपका चॉकलेट बन रही है, चाहे आइसक्रीम बन रही है, कैंडी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, वो बेस उसका एग्रीकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चर की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लोगों ने जो है उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया और कुछ ही लोग उसमें रहे। तो अब ये इस सोचने की बारी आ गई कि हम इसको कैसे लिंक करें, कैसे लिंकेजेस, हाउ टू डेवलप दीज लिंकेजेस, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने बात की अभी कहा गया कि भट्ट साहब ने कहा कि वहाँ पे हम जो है होटल इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, इसी तरह से उसमें जो है कई और भी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम जो है अच्छा इसको लिंक कर सकते हैं अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में तो खास करके बहुत अच्छी जलवायु है और खास करके हमारे पास हाई हिल्स भी हैं जो एल्पाइन एरिया जो उनके आसपास है, जहाँ बहुत ठंडा होता है। यानी आप देखिए जो 2400 मीटर से लेके 2500 मीटर तक की हाइट के भी इलाके हैं, यानी 2200, 2300, 2400 मीटर उससे भी ऊपर के हैं। लेकिन 2200, 2300 मीटर पे भी हम कुछ अलग तरह की जड़ी बूटियाँ या अलग तरह के हर्बल प्लांट्स उगा सकते हैं। थोड़ा नीचे आए हम 1700, 1800 मीटर के लेवल पे आए, जो कि जहाँ पे बर्फ़ तो पड़ती है लेकिन कम दिन टिकती है। ऐसी जगहों पे हम अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं। अगर हम आए नीचे एकदम घाटी में, तो वहाँ पे नदी घाटी क्षेत्र है हमारे, तमाम तरह के ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे पूरे उत्तराखंड में देख लो, चाहे आप पिथौरागढ़ में थल में चले जाओ, और इधर सोमेश्वर चले जाओ, इधर पौड़ी में चले जाओ, इधर सतपुली चले जाओ, उधर आपका चमोली में आपका गौचर चले जाओ। दीज आर द एरियाज वेयर यू विल फाइंड फ्लैट लैंड्स अवेलेबल एंड कंपैरेटिवली वार्मर भी हैं। तो ऐसी जगहों पे हम जो है जो दे आर एज गुड एज और प्लेन काउंटर पार्ट्स, जो हमारे प्लेन में जो भी हो रहा है, जो गर्म इलाके में हो रहा है, वो वहाँ सब कुछ होता है। तो हमारे पास 3 तरह की अपॉर्चुनिटी एक विद इन द स्टेट अवेलेबल है और जिसको हम अच्छी तरह से हार्नेस कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, रादर हार्नेस नहीं बट वी कैन यूटिलाइज दैट। तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हार्नेस तो ऐसा धोना टाइप का होता है ना, वर्ड सही नहीं है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो हो जाए। तो इसमें कई तरह के पौधे हैं। आप जैसे अलग अलग जगह की बात करो, पौधे की मैं बताऊं, जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाइए आप, तो कुटकी बहुत अच्छा पौधा है। कुटकी हर जो है कुटकी 3 साल में इसकी खेती की जाती है। इसकी जो रूट्स हैं, राइजोम्स हैं, आपका जितनी भी लीवर से संबंधित दवाइयाँ बनती हैं उसमें काम आती है। इसी तरह कुत है, कुत की जड़ में भी इसी तरह 3 साल में यूज़ की जाती है, जिसमें कि एसेंशियल ऑयल भी होता है, वो भी काफ़ी काम आती है, दवाई में काम आती है, उसकी बड़ी डिमांड है। इसकी तरह से कई और भी इम्पोर्टेंट पौधे हैं, जैसे कि पोडोफाइलम है जिसको हम वन ककड़ी कहते हैं, बहुत ऊंचाई इलाका ऊंचाई में पाया जाता है।
कैंसर के रोगों में काम आता है, तो वो भी वहाँ पे हो सकता है। अगर आप 2200 से 2300 मीटर 2400 मीटर हाइट पे हैं तो वहाँ पे आप ये इस तरह के पौधे उगा सकते हैं। इसी की तरह से थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा सा मतलब 1700-1800 मीटर के आस पे, वहाँ पे तमाम तरह के आप जो एरोमेटिक प्लांट्स है, जो कि हाई वैल्यू एरोमेटिक प्लांट जिनको हम कहते हैं, जिनकी डिमांड जो जगह जगह बनी हुई है, होटल इंडस्ट्री में है, मेट्रो सिटीज में है, जगह जगह है। जैसे रोज जिरेनियम की बात करते हैं हम, जिरेनियम ऑयल जो आपने देखा होगा हाई गेट परफ्यूमरी में यूज होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप वेलेरियाना, इंडियन वेलेरियन एक क्रॉप है, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, और जिसको हम की लोकल भाषा में सम्यो कहते हैं, समेवा या सम्यो कहते हैं, है ना। और बहुत ही एरोमेटिक है और यूनिक है, मतलब हमारे प्लांट जो आपको बस सर आपको मैं इसमें थोड़ा सा इसी के कंटिन्यूएशन जो आप बोल रहे हैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी आप क्रॉप का नाम बता रहे हैं और जो बता रहे हैं आप क्रॉप लगती है, तो इसमें से ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिनको हम अभी लेट्स से अगर हमको क्विक समझना हो, जो एसेंशियल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आपके सैनिटाइजर हो या कोई आप टी चाय बना रहे हो, एनर्जी इम्यूनिटी बूस्टर टी बना रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज़, तो ये कौन कौन से प्लांट हम लगा सकते हैं और क्या उन सारे एरिया में ये प्लांट लग सकते हैं जहाँ पे कि फिर मैं मैम को भी इंक्लूड करता हूँ डिस्कशन में, कि जहाँ पे कि जो हमारे किसान हैं जो कि उस साइड हैं, अपने गढ़वाल साइड में है या कुमाऊं साइड में है, क्या उन सारे क्षेत्र में ये पॉसिबल है तो कैसे, थोड़ा उस पर आप क्विक कीजिए इसको। जितने सैनिटाइजर आपको बनाना है तो बेसिकली अल्कोहल की मात्रा उसमें देखनी पड़ेगी 75% और वो, तो जितने हमारे एरोमेटिक ऑयल्स हैं दे आर अल्कोहल्स, वो अल्कोहल ही होते हैं और उनको उस तरह से यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी सी इनोवेटिव आपको आइडियाज़ उसमें लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि कितना हाउ मच इफेक्टिव वो कितना है, उसको देखना पड़ेगा, आपको लैब में किसी को भी कराना पड़ेगा। जी सर। तो जितने एसेंशियल ऑयल हैं ज़्यादातर, चाहे वेदर यू टॉक अबाउट जिरेनियम ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, पामारोजा ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, सारे में जो है अल्कोहल बेस्ड हैं, मतलब अल्कोहल ही हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सैनिटाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसमें थोड़ा बहुत मीन्स रिसर्च थोड़ी सी आपको ज़रूरत है एकदम से। जी सर, जी सर, जी सर। और ऐसे इसके अलावा आपके पास कई तरह के पौधे ऐसे होते हैं हमारे, जो जिसको हम हर्बल टी के रूप में आप सुना होगा, 200-250 पौधे ऐसे हैं जिनको हम हर्बल टी के रूप में, आपने कैमोमाइल का नाम सुना होगा, कैमोमाइल टी, और आप क्या कहते हैं ये, और भी कई चीज़ें, रोजमेरी और तुलसी, तमाम तरह के ऐसे हैं। इवन जिस रोज का भी होते हैं, रोज की भी टी बनती है। तो ऐसे तमाम तरह के पौधे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनसे हर्बल टी बना सकते हैं। हर्बल टी मीन्स अपना आपका एक इन्फ्यूज़न आपने बना दिया, मतलब मटेरियल तैयार कर दिया, और उसको जो है जो आदमी उसको पसंद करे, मतलब थोड़ा सा उसमें होता है ऑर्गेनोलेक्टिक, आपको करने पड़ेंगे कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं। आपको 100 लोगों को चाय पिला के देनी पड़ेगी, फिर उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, तो देन यू विल मतलब आप कंक्लूजन पे किसी पहुंच जाएंगे। तो उस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इस तरह से हर्बल टी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जिरेनियम की बात की, जिरेनियम से भी आप सैनिटाइजर बना सकते हैं, डिओड्रेंट्स बना सकते हैं, और आप रूम फ्रेशनर बना सकते हैं, ये मॉपिंग के, ये तमाम फ्लोर क्लीनिंग के लिए कुछ भी केमिकल बना सकते हैं, मतलब वो बना सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें लेमन ग्रास से बना सकते हैं। तो हमारे जैसे नीचे वाले गर्म इलाके क्षेत्र हैं, उसमें लेमन ग्रास आप उगा सकते हैं। जो आपके नदी घाटी के क्षेत्र हैं, जैसे रामनगर के आसपास के इलाके हैं, इधर सतपुली के आसपास के इलाके हैं, इधर काला डूंगी के आसपास के इलाके हैं, आपका कोटद्वार के आसपास के इलाके हैं, और इधर विकास नगर है, आपका रोईवाला है, इन जगहों पे आपका लेमन ग्रास आराम से हो सकता है। जी मैम, इसी पे क्विकली मैम मैं आपको थोड़ा आपसे इसी डिस्कशन को और आगे कंटिन्यूशन में समझना चाहूँगा। जैसे सर बता रहे हैं कि हमारे पास आज की डेट में, जैसा मिस्टर भट्ट ने आइडेंटिफाई किया कि सैनिटाइज़र अगर हम एक बेस को लेके चलें और एसेंशियल के साथ इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास ऑन फिंगर्स ही अराउंड 5 to 6 ऐसे एसेंशियल ऑयल प्लांट्स हैं जिनसे आप सैनिटाइजर बना सकते हैं ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट।
तो क्या हमारे पास जो लोग हैं और जो किसान हैं, चाहे वो किसान हैं चाहे जो लोग बाहर से वापस आए हैं, इस खेती के साथ क्या हम एग्रो टूरिज्म को भी किसी वे में इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि बाहर के अगर देशों में देखा जाए और आप जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे अभी मेडिकल टूरिज्म और अरोमा टूरिज्म और फॉर दैट मैटर एग्रो टूरिज्म, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। और हम लोग खुद उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पे हैं जो कि बहुत ही सीरीन है और बहुत ही प्राकृतिक है हर तरह से। तो ये अगर इन दो को हम साथ लेके चलने की कोशिश करें कि हम एक ऐसी खेती करें जो सबके लिए नई हो, जैविक भी हो और सबको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, चाहे वो अर्बन सिटीज में चाहे कहीं भी रहते हैं। एट द सेम टाइम हम उनको वहाँ किसी अवेयरनेस के थ्रू, मतलब कि आप जैसे हम रुपाई होती है, रुपाई में इन्वॉल्व करें या किसी में इन्वॉल्व करें, तो क्या हम इसको एक एज अ वे फॉरवर्ड देख सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है सागर, अपॉर्चुनिटी तो बहुत जरूर है, और इसको अगर करना है तो शायद मिल के करना हो, क्योंकि ये एक ऐसी नई चीज है। एक तरफ पे मार्केट है आपका, भट्ट जैसे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये मार्केट चाहता है। उसी तरफ हमारे पास नेगी जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि हम क्या क्या उगा सकते हैं, कहाँ कहाँ उगा सकते हैं। मगर ये दोनों के बीच की जो कड़ी है, ये एक ही व्यक्ति शायद ये सारा ना कर पाए, क्योंकि जैसे बात की जी नेगी जी ने, मैम। रिसर्च की जरूरत है, कुछ उसकी रिफाइनमेंट की जरूरत है, कुछ उसको प्रोडक्ट टेस्टिंग की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें एक तरह से कड़ी अगर बना लें कि गांव के कुछ लोग साथ में मिलकर काम करें, उसमें बीच में कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स आए जो उसको मार्केट के साथ कनेक्शन को बढ़ाएं, उसको फैसिलिटेट करें, तो ये जरूर हो सकता है। और एग्रो टूरिज्म मतलब आई थिंक जो बैक टू बेसिक्स की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो गांव में क्यों सफल हो पाती है, क्योंकि हम एक चीज पे निर्भर नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कहीं एक जो, और खासकर उत्तराखंड में तो इतनी आपदाएं आती हैं, आई थिंक यहाँ की सारी जो जनता है वो एक तरह से बड़ा मजबूत, उनका एक दिल भी है और एक उन्होंने सीख भी लिया है कि हर चुनौती को कैसे बाहर निकलते हैं। तो जिस कभी ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा बर्फ हो गई, तो कुछ एक तरह की क्रॉप चल पड़ेगी, किसी साल कम हुई तो बर्फ नहीं पड़ी, तो एक उनका एक बास्केट ऑफ लाइवलीहुड्स है। ठीक है, आज टूरिज्म नहीं चल रहा है तो खेती है, जब टूरिज्म चल पड़ेगा तो वो एग्रो टूरिज्म हो जाएगा। तो ये जी इसको सस्टेनेबिलिटी भी है और रेजिलियंस भी है जी कि मैम। आपके कहाँ एक मुसीबत आई तो आपके पास और पाँव हैं खड़े होने के लिए, आप एक पाँव पे नहीं खड़े हो। तो जब एक साथ मिलके गांव में लोग काम करते हैं तो एक तो सहारा हो जाता है हर आपको, क्योंकि क्वांटिटी की भी जरूरत होती है। आप इन सारी चीजों को जब ऑयल में शायद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स लगेंगे, वो उसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल लगेगा। तो ये जी एक मैम। चेन बनानी पड़ेगी, ये रातों रात बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, और मार्केट को प्रोडक्ट चाहिए उस क्वालिटी लेवल तक जाने में भी समय लगेगा। मगर जैसे रितेश कह रहे थे कि शायद उत्तराखंड के लिए थोड़ा आसान भी होगा, क्योंकि ये दिल्ली और हरियाणा और गुड़गांव और इस तरह बड़े शहरों के पास है, लोग ड्राइव करके आ सकेंगे। शायद लोगों में इतने महीने घर में रहने के बाद एक चाहत रहेगी कि हम कुछ प्राकृतिक स्थलों पर जाएं। फ्लाइट पे जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, तो यही सबसे पास की जगह है जो शुरुआत होगी। और यहाँ पे फिर टूरिज्म के साथ ये बाकी चीजें जब हों जो लोगों को इस वक्त प्रभावित कर रही हैं, स्वास्थ्य वाली, हर्बल वाली, तो जरूर होगा। मगर ये एक तो ये ऊपरी सतह है, मैं हम और आप जो सारी बात कर रहे हैं कि ये जो खेती हो ये ऐसी, ये अपने आप ही खड़ी हो, ये टूरिज्म चाहे हो चाहे ना हो, ये इनको एक रोजगार का जरिया बने, उसके लिए साथ में मिलकर एक क्वांटिटी बनाकर, फेडरेशन बनाकर, जब पूरा गांव आके, मैंने देखा है हिमोत्थान के काम के साथ कि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो वो फिर बीच के मिडिल मैन को बाईपास कर लेते हैं, सीधे मार्केट से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने आप को मार्केट कर पाते हैं,
एक वो फेडरेशन उनके लिए मार्केटिंग का काम कर देती है। तो ये सारे चीजें जो शायद एक अंधाधुंध होड़ में कि भाई मैं निकल जाऊं गांव से कैसे भी, मुझे तो बस पढ़ना लिखना बाहर चले जाना, बस एक आदमी अपनी सोच रहा है, उससे हटके एक गांव के साथ जुड़ के, आपस में जुड़ के, साथ में कॉमन सोल्यूशन निकाल के वैसी सोच रहेगी तो बहुत नया हो सकता है। उत्तराखंड में भगवान ने प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, तो सबका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। थोड़ा काम करने की बात है, कुछ शायद सफल एग्जाम्पल भी हैं, वो भी देखना पड़ेगा। जी मैम, जैसा कि आपने अभी कहा ही ये जो प्लेटफॉर्म भी है और आने वाले टाइम पे एक्सटेंड भी होगा। हमारे पास मार्केट एक्सपर्ट से लेके एक रिसर्च एक्सपर्ट एंड देन आपके पास फार्मिंग बैकग्राउंड और ग्राउंड लेवल का बैकग्राउंड है, और हम वी बीइंग सोशल एंटरप्रेन्योर जो हम ग्राउंड पे काम करते हैं, आई थिंक कलेक्टिवली यू आर राइट कि अगर हम एक सिस्टम जनरेट कर सकें, एक लूप होल विदाउट लूप होल वाला सिस्टम जनरेट कर सकें, जहाँ पे कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वही उसकी ही क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है, और उसी को एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उस पर काम हो रहा है, शोध हो रहा है, और उसके बाद टेस्ट एंड ट्राई के बाद वो मार्केट में आ रहा है, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और रिजेक्शन के पैरामीटर बहुत कम हो जाएंगे। और इसी से जैसा आपने एक और चीज़ पॉइंट आउट की कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है एग्रीकल्चर क्रॉप, तो उसी को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए एक और स्किल डेवलपमेंट के भी कई वेज हैं जो कि हम ताज कॉर्बेट में करते हैं, जिसमें कि मूंज क्राफ्ट और एम्प एंड आर्ट जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिससे कि उनको इन बिटवीन, अगर 3 महीने की एग्रीकल्चर है या 6 महीने की एग्रीकल्चर, तो इन बिटवीन उनको रेगुलर रिसोर्स ऑफ इनकम मिलता रहता है, जो कि वो ट्रेडिशनली करना भी चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कई आर्ट हो रही हैं। तो मैम आपका ये जो अपने पॉइंट रेस पे एक सेट ग्रुप ऑफ माइंड और एक्सपर्ट को इकट्ठे आना पड़ेगा, और एक कम्युनिटी के फॉर्म पे आना पड़ेगा, नॉट फॉर वन डे बट एक रेगुलरिटी पे, तब शायद उत्तराखंड एज एन होल की हम बात कर सकें। मिस्टर भट्ट, इसी पॉइंट पे आगे आते हुए कि अगर हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ ग्रुप है जो कि स्टार्ट एंड टू एंड सोल्यूशन की बात कर रहा है और एंड टू एंड पैरामीटर्स की बात कर रहा है विद नॉट एक हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस के बेस पे, बट जो नई रिसर्च और नए तरीकों से, जहाँ पे शायद अगर हम इस तरीके से चलें तो हमारी यंगर जनरेशन है वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहे, बिकॉज रिटर्न अच्छे हैं। तो आपका इसमें टेक क्या है? जो मिर्ला ने कहा, एक्चुअली जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, मैं तो उसी पे जाऊंगा। आई थिंक जो उन्होंने कृषि के ऊपर शुरुआत में कहा था ना, उसको अब जो 40-45 दिन बीत चुके हैं कोविड-19 को देखते हुए, जो हमें समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर से ज्यादा सस्टेनेबल कोई चीज हो नहीं सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये रही है शायद कि प्रोड्यूस चाहे ज्यादा हो या कम हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ थी कि लॉजिस्टिक वीक थे और वो राइट जगह पहुंच नहीं पाया मार्केट सोर्स में। तो अगर हम उस चीज को चैनलाइज कर लें, मार्केट सोर्स डिफाइन करते जाएं, बीच में ऐसे लोग आ सकें या ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जो जानते हैं प्रोड्यूस करना है, तो चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी एक सेक्शन है, एक वर्टिकल है जी सर। एग्रीकल्चर को कंज्यूम करने का। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे वेन्यूज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको किस तरह से रखना है ताकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट की जा सके, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मैं बिल्कुल सर। आज से 1 हफ्ते पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, दुबई में है, ही इज मेडिसिन। तो कह रहे थे मैंने एसेंशियल्स के लिए कुछ ऑर्डर किया, उस टाइम पे बकवीट, जिसको हम यहाँ कुल्लू या मंडवा बोलते हैं, वो वहां पे उनको मिला है 1100 इंडियन रुपए के हिसाब से, लगा लीजिए आप, पर केजी, 1100 रुपीज पर केजी मंडवे का आटा। तो वो वहां पे पावर ग्रेन की तरह यूज किया जाता है। हमारे यहाँ हम उत्तराखंड में उसको लॉस्ट ग्रेन ऑफ हिमालय बोलते हैं। तो एक कैची नेम, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग इन्फ्लुएंस, और उसमें वो क्वालिटी है, उसका वो गलत नाम नहीं है। इट इज अ पावर ग्रेन एंड इट इज अ लॉस्ट ग्रेन ऑफ हिमालय। सो अगर इन तरह की चीजों को रीइंफोर्स किया जा सके, जो यहाँ की उगने वाली ओरिजिनल चीजें थी, तो वो भी उतना ही रिजल्ट देंगी। बिल्कुल। तो वो जरूरी है। और ऑब्वियसली होटल्स और होटल इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म देती है जिससे थोड़ा सा मार्केटिंग का स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। जी तो जी हम सर। वहां पे पिच कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मुझे लगता है कि हम जब प्रोड्यूस को तैयार करें
तो हमें उसका एंड रिजल्ट पता होना चाहिए और ये श्योर होना चाहिए कि इसका 100% कंजम्पशन होगा, कि वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो कुछ लोग होके आए हैं लोग, अगर वो ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाया तो फिर इशू है। तो एक चैनल का बनना, एक चेन का बनना जो कि एंड टू एंड रिजल्ट जनरेट कर सके, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। जी सर, राइटली सर क्योंकि वरना हमेशा एक फार्मर्स के साथ जो भी एसोसिएट हैं, उन्होंने ये चीज़ हर किसी ने फेस की है कि शुरुआत तो फार्मर्स के साथ कोई भी बहुत अच्छे से करता है और वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बाय द टाइम क्रॉप लगती है और उसको मार्केट में लाने का टाइम आता है तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी आते हैं। कई बार नेचुरल तरीके से आते हैं और कई बार हम कोई भी डिलीवर नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक जब तक एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड प्लान हर तरीके से हमारे पास ना हो, वी शुड डू, हम लोगों को ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा आगे तक जाना चाहिए। मोहित, अभी जैसा मिस्टर भट्ट ने एक बहुत सही पॉइंट आउट की एक चीज़ कि जो भी हम लोग करते हैं वो कम्युनिकेट हो टिल द डाउन लेवल, और जो मार्केटिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की और कोई भी चीज़ जो आती है वो कम्युनिकेशन जो एक एंड कंज्यूमर तक जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया मडवे का आटा और कुडू का आटा वहाँ इस अमाउंट का मिल रहा है, ये भी एक स्किल है उन लोगों की जो वहां तक पहुंचाया है। तो कितना जरूरी है यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का होना, और क्या एक बेसिक तरीके से क्या गांव से भी लोग उसको समझ के अपने ही डोर स्टेप से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं टू एंड कंज्यूमर। या जैसे आप तीनों की जो अपने अपने क्षेत्र में काम है बहुत बढ़िया है, मतलब आप लोगों का देखने का तरीका वो इंस्पायर करता है लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने अलग अलग फील्ड पे। तो जैसे मुझे लगता है मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे वो एक व्यक्ति को एक होप दिला सके या एक विश्वास दिला सके कि वो जो कर रहा है, लाइक उसके लिए जिस जगह से वो बिलोंग करता है वो बहुत अलग है। जैसे कि अभी हमें कोविड में पता लगा कि कम से कम 68,000 जो लोग हैं वो वापस आए हैं उत्तराखंड में, जिसमें 5% विदेशी थे जो वापस आए हैं पहाड़ों पे। एंड उन लोगों का हमें अभी भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि वो लोग यहाँ पे भी रह के बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। तो ये जो होप वाला जो पार्ट है, ये भरोसे वाला पार्ट है, ये मीडिया उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आप भले ही एक वीडियो से इंस्पायर्ड हो, आप एक वीडियो देख के आपको एक कुछ कर गुजरने की जो ये इच्छा होती है, ये एक व्यक्तिगत तौर पे लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है कि यहाँ पे भी बेसिक रूप से वो अपने व्यक्तिगत रूप से योगदान कर सकते हैं एक गांव को या अपने आप को, अपनी लाइफ को एक अच्छा मयाम देने में। तो हमें ये भरोसा दिलाना अभी बहुत जरूरी है कि वो लोग जिस जगह पे भी हैं वहां पे अपना एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। तो कोविड से शायद हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई गेस मुझे तो लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास अभी अपने आप को दोबारा जाने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें वो सर्किल बनाना बहुत जरूरी है, बैक एंड फॉरवर्ड वाला, जो लोग समझ पाए अगर इस सर्किल को कि वो लोग कैसे अपनी जो नॉलेज है, जैसे उत्तराखंड हम जानते हैं हमारे जो ऑर्गेनिक तरीके हैं वो विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे ये रागी का पहली बार मुझे पता लगा जब मैं कर्नाटका आया कि यहाँ पे मडुए के आटे को रागी बोला जाता है एंड यहाँ पे उसको एक पावर हाउस की तरह जाना जाता है वो आटे को। एंड यहाँ पे सच में उसके रेट और हमारे गांव में जो मिल रहा है वो जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसी को एक अच्छे से पैकेट करके एक अच्छे वर्ड के साथ जो मार्केट हो रहा है वो, तो उसके बिस्किट बना के जो सुपर फूड के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। जब मुझे ये पता लगा तो मुझे अंदर से बहुत बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोगों के पास सही टाइप की नॉलेज है नहीं। जो भी चीज हमारे पास है रागी और अदर, पर यही है मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जहाँ पे लोगों को व्यक्तिगत से इंसान को अंदर से जागरूक करने के लिए कि वो और लोगों से, जैसे मैडम ने बोला कि एक ग्रुप फॉर्म करना जरूरी है। तो जब तक हमारे अंदर अपने अंदर विश्वास नहीं है हम वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है मीडिया वहां पे बहुत बड़ा रोल करता है एक संगठन बनाने के लिए और एक लोगों को एक आवाज पहुंचाने के लिए। तो हम लोग उसी तौर पे काफी डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है हम लोग दो लोग इतने सोशल एक्टिव नहीं है जितने हम लोग हैं। फेसबुक एक माध्यम है जिन तक हम वो पहुंच सकते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि जैसे पोस्टर्स हो गए, गांव में जो ग्राफिटी है, जो हम लोग बचपन से स्कूल चले हम एक ग्राफिटी देखते आ रहे होंगे
जिसमें दो बच्चे हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं, वो पोस्टर जो है हमारे दिमाग में छपा हुआ है। तो हम लोग मैं भी काफी आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हूँ उत्तराखंड में, एंड हम लोग काफी ऐसी पहल कर रहे हैं कि बेसिक सी स्कूल चले हम, एक बहुत बेसिक सा मैसेज है जो लोगों को प्रेरित करता है कि ये स्कूल की तरफ जाने। ये हम जब एक दीवार पे देखते हैं, डेली हम लोग देखते रहते हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है वो करने के लिए। तो ये बेसिक से मैसेज हमें उन गांव वालों तक पहुंचाने हैं, थ्रू ग्राफिटी हो या सोशल मीडिया हो, ये चैनल्स अलग अलग है बट आवाज हमारी एक है, लोगों को जागरूक करने की। और इसी में मुझे लगता है हम लोग अगर आगे जाएं तो बहुत अच्छा फ्यूचर होगा उत्तराखंड। बिल्कुल सही बात कही मोहित। एक जो जिस ग्राफिटी की बात की, ये डॉक्टर ये हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो हमारे तो बचपन से दूरदर्शन पे जब ये आता था तो तब लगता था कि कुछ एक स्टेटमेंट, एक संदेश दिया है, तो आज तक वो इम्प्रिंट है। तो आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसे वे ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए जो कि बहुत बहुत ही सिंपल हो बट इक्वली इम्पैक्टफुल भी हो। तो अगर ऐसी कोई चीज और ऐसा हम लोग कोई वे और मीन्स निकाल पाए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हो गए या कोई भी अलग अलग फॉर्म हो। मेरी मैम से कल ही बात हो रही थी तो मैम ने ये बोला कि व्हाट्सएप में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एट टाइम्स लोग बिलीव नहीं करते हैं। वो इतनी ज्यादा आपको आपके फोन को हॉन्ट करती है कि आप उस पर फर्दर आप इंटरेस्ट शो करना कम कर देते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को विद योर हेल्प और पीपल लाइक योर हेल्प, हम लोगों को एक ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन का एक सिस्टम जनरेट करना भी पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम सोच रहे हैं वो उसी फॉर्म में और मे बी मच सिंपलर फॉर्म में टू एंड पीपल तक जाए, वो आखिरी उस इंसान तक जाए, शायद वो पढ़ा लिखा भी ना हो और उसको विदाउट एफर्ट उसको रजिस्टर कर जाए। तो आई गेस हम लोग थोड़ा सा टाइम का शॉर्ट भी हैं, तो वी हैड अ गुड डिस्कशन। और काफ़ी जब हमने शुरू किया था और अब जहाँ पे हैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर भी है और समझ में भी आ रहा है कि किस वे पे हम काम कर सकते हैं। तो एक बहुत क्विक नोट फ्रॉम एवरीवन, एक व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द एंटायर कन्वर्सेशन, हमारा टेक अवे क्या है और वे फॉरवर्ड, एंड देन वी विल कंक्लूड। मैम, टू स्टार्ट विद यू। बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज सारे पैनलिस्ट से आए। मैंने तो काफी नोट्स बना लिए और ये सारा चीजें सब आई थिंक मिल के काम करने की जरूरत है। आपने शुरुआत की है, मैं ये एक तरह से कि साथ में मिल के काम करने की जरूरत है। ये इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये अकेले काम नहीं होगा। और जो सारे इस पैनल पे लोग हैं, इन सब की तो जरूरत है ही, शायद कुछ और भी लोगों की आवश्यकता पड़े, उन सब को जोड़कर जो आपने की है, आपको साधुवाद दूंगी। ये बहुत अच्छी चीज है, धन्यवाद और मैम। इसको आगे बढ़ाइए अगले चरण पर। बिल्कुल मैम, अब इसके आगे भी इस पे काम होगा। मिस्टर भट्ट, आपके फाइनल टेक अवे फ्रॉम सेशन और आप फ्यू लाइंस। थैंक यू सागर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन कंडक्ट कराने की। इनसाइट तो इम्प्रूव हुई है ऑब्वियसली, एक डायरेक्शन भी समझ में आ रही है कि हाँ, दिस इज हाउ ऑल द एनर्जीज कैन बी चैनलाइज्ड टू अचीव समथिंग। मुझे लगता है पर्सनली कि ये अपॉर्चुनिटी है हर उन लोगों के लिए जो वापस आए हैं अपने आप को रिकनेक्ट करने के लिए लैंड के साथ, जो ट्रेंड बोल रहे हैं, जो इतने सारे सर्वे जैसे मिर्ला बोल रही है और आपने जैसे कहा, यकीन मानिए काफी आती हैं आर्टिकल्स और रिपोर्ट, कुछ पढ़ते भी हैं उसमें से काफी रिपोर्ट इंडिकेट कर भी रही है कि जितना पलायन, ये रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी तो लेके आया है उत्तराखंड के लोगों के लिए। सो अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी और मेहनत करे, थोड़ा सा और अपना जुझारूपन दिखाए और फिर अगर ये चैनल काम करे तो दे कैन चेंज देयर लाइफ। दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आल्सो। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। शुरुआत छोटी होती है लेकिन अगर सब लोग मिलके करें तो आई थिंक ये एक प्लेटफॉर्म और उस टाइम पे हम पहुंच गए हैं
जहाँ पे सब साथ आ जाएं तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और इसी पे डॉक्टर साहब, आपसे तो आज बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला। आपने कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो कि हम लोग सुनते हैं, लेकिन उससे आज तक नहीं पता था, क्योंकि मैं खुद एसेंशियल ऑयल में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन एसेंशियल ऑयल से हम सैनिटाइज़र भी बना सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत नया था। तो थैंक यू, आपने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी है सबको। आपके टेक अवे फ्रॉम द सेशन और फ्यू लाइन्स अबाउट हाउ टू टेक फॉरवर्ड। बहुत अच्छा डिस्कशन मुझे लगा ये, और जहाँ तक बात निकल के आई, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चैनल एक होना चाहिए जो फार्मर से लिंक करे। जैसे हम देखते हैं, चाहे एसएचजी है, उसके बाद फेडरेशंस हैं, और देन उसका बाद कोई और है, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्टीमेटली जो है वो फार्मर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमें कहीं ना कहीं ये करके दिखाना पड़ेगा। करके मीन्स एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए चीज़ें, तभी जो है उसका रेप्लिकेशन हो पाता है। अदरवाइज मीडिया में कर देने से तो बहुत, जैसे बताया कि बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कभी कभी अगर वो मीडिया में अगर वो सही चीज़ ना हो तो वो बैक फायर भी करते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही जाए। अच्छी बातें हैं तो आगे बढ़ें, उसको लोग करें, अपना आत्मसात करें और आगे बढ़ें। तो हमें ये देखना है कि अच्छी कुछ अपनी तरफ से भी हमें इनिशिएटिव पहले ज़्यादा मात्रा में बहुत एनर्जी के साथ लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा रस्सा खींचने में जो है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पहले, और बाद में पीछे वाले तो थोड़ा खींच देते हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा। और जैसे बात की थी भट्ट जी ने, की बहुत बढ़िया अभी मंडवे की बात है। असल में थोड़ा सा ये ऑडियो उतना वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरा पता नहीं लैपटॉप ही गड़बड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शनल फूड भी है। हमारे पास जी जी बड़े सर। जैसे रागी है, मंडवा है, बहुत सी चीज़ें हैं, और अभी लंबा चौड़ी लिस्ट इसमें बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कई चीज़ें हैं। और हमारे पास जी निश सर। एरियाज भी है, जैसे कि यहाँ की राजमा, यहाँ का वो, यहाँ का हर जगह अलग अलग वो हैं, उनको भी हम जी सर। प्रमोट कर सकते हैं। ब्रांडिंग भी हो सकती है, और ब्रांडिंग अल्टीमेटली जो है वो उसको बढ़ाएगी। तो वो लीकेज हमारा जो है ऊपर से नीचे पूरा बना रहे, ऊपर से डिमांड आए, इधर से जो है प्रोडक्शन हो, तो वो एक तरह से जो है स्मूथली, जैसे मशीन काम करती है उस तरह से वो काम करे, तभी वो हो पाएगा। और सबका उसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, मीडिया का और आप लोगों का, डेवलपमेंटल वर्कर्स जो हैं हमारे, सर्विस सेक्टर के आदमी हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा एनजीओ में कभी रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे पता है। बिल्कुल सर। मुझे अभी याद आ रहा है सब, तो किस तरह से फेडरेशन बनाते हैं वो सब एक्सपीरियंस है हमारे पास। जी हमने सर। भी कभी वो फेडरेशन बनाई थी। तो जी सर। कहने जी का सर। मतलब ये है कि इस तरह से इसको अभी थॉट प्रोसेस में और चर्निंग की जरूरत है। मतलब ये खैर ये बिल्कुल बिगनिंग सर। अच्छी है, बहुत अच्छी है, और होपफुली मतलब वी विल रीच टू दी डेस्टिनेशन जो हम चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। और बहुत अच्छी शुरुआत है, और मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी और आप लोगों से बात कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर। आप अल्टीमेटली इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरुआत और गाइडेंस आप ही की ओर से मिलेगा। और अच्छा लग रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आप काम भी किया, और तो आपका दोनों सेगमेंट की काफी अच्छी नॉलेज। कमिंग बैक टू मोहित, व्हाट इज योर टेक अवे? आपको क्या इस सेशन से टेक अवे है, और व्हाट इज योर थॉट, फाइनल थॉट्स? तो एक सशक्त देश बनने के लिए सशक्त गांव बनना बहुत जरूरी है। तो हमें लोकली ग्रो करने की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा लोकली कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे ज्यादा काम करें, जैसे चाहे वो एग्री टूरिज्म हो या कोई भी अलग मीडियम है जिससे हम लोगों को बाहर बता रहे हैं, पर हमें लोकली काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे हम लोग सबके साथ और सबका विकास को आगे ले जाके कैसे हम लोग काम करें कि ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को सपोर्ट, उनको आइडियाज देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब उन लोगों के पास सारी नॉलेज है लोकली, बट उनके पास तरीके नहीं है कि कैसे वो अपने थॉट्स को आगे ले जा पाए। तो हमें उनको वो रास्ता दिखाना है कि कैसे जो हमारे उत्तराखंड के विलेजर्स हैं, जैसे उनको ये पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती जो वो कर रहे हैं वो कितनी फेमस है बाहर। लोग आजकल ऑर्गेनिक चीजों के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं, आप सभी जानते जी हैं।
1 kg आलू लाना हो या वो टमाटर हो, ऑर्गेनिकली कितने डिफरेंट रेट है। उनको ये आइडिया नहीं है अभी ये कि कितना ज्यादा लोग हैं इस हेल्थी लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड जो वो लोग ग्रो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बाहर। तो मेरे ख्याल से ये मीडियम पे हम लोग काम करेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए बना सकते हैं। एंड जैसे सब मैडम जी ने बोला, सबका साथ आना बहुत जरूरी है इसके लिए, और एक ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर अगेन ब्रिंग आउट द सेम थिंग जो हमारे इस पूरे कन्वर्सेशन और इस डिस्कशन का आई गेस जो हम अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड कर पाएँ तो वो यही होगा कि किसी एक सेगमेंट के आगे आने से और पुश करने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स को इकट्ठे आना पड़ेगा और फॉर लॉन्ग रन के लिए आना पड़ेगा। और शायद ऐसा मैम ने भी कहा भी कुछ ऐसे और भी सेक्टर हो सकते हैं जिनको शायद अभी हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। जैसा मिस्टर भट्ट ने पॉइंट आउट किया कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रांडिंग बहुत चीज़ें हैं। तो आई गेस अगर हम सब लोग एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को देखते हुए एक शुरुआत आज करते हैं और इसको एक रेगुलर कनेक्ट रह के एक सिस्टम जनरेट करते हैं और हम आज उन लोगों के लिए या उन उन सोसाइटीज के लिए या फार्मर्स के लिए एक एग्जांपल सेट कर पाएं कि कैसे कोई भी चीज सस्टेनेबल तौर पे लंबे टाइम के लिए इकोनॉमिकली उनके लिए भी अच्छी हो तो हमारे लिए अच्छा होगा। और सिंस हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं तो वट हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम आप सबसे कनेक्ट हैं। तो हम इंडिविजुअली अब सेकेंड स्टेप यही होगा कि मैं इंडिविजुअली आप सब लोगों से कनेक्ट करूंगा और फिर हम लोग एक इसी डिस्कशन को एक प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूशन वे पे फॉरवर्ड ले जाएंगे ताकि जब तक हमारे पास एक ये टाइम बचा हुआ है कि जो भी इश्यूज हैं अभी उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन तौर पे। तो हम लोग फिर दोबारा कनेक्ट होंगे। एंड वंस अगेन मैं दिल से आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और उस पॉइंट पे एक्चुअली डिस्कशन करने की मतलब पहल की है जिस पे ऑनेस्टली अभी बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। वो है से लेकर की बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा है। हमने बहुत लोग कनेक्ट भी किया था लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पहले आते हैं वो एक सबके लिए एक मार्गदर्शक का रोल निभाते हैं और आई होप कि जो आज हम कर रहे हैं उससे वो लोग भी इंस्पायर हों और जो कुछ करना चाह रहे थे लेकिन शायद उन्हें एक राह नहीं दिख रही थी। तो थैंक यू एवरीवन आप सभी का धन्यवाद आने के लिए और आपसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे एंड थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नाइस सेशन।